ਭੈਰਵ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਭੈਰੋਂ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸੋਮੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਚਨਹਾਰ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਨਾਮ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ। ਸੋ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਹਮਾਰਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਾਮ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਹਮਾਰਾ ਆਵੈ ਕਾਮੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਰੋਮ ਰੋਮ ਰਵਿਆ ਹਰਨਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਰਿ ਧਿਆਵੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਨ, ਉਹ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪਸਰਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਰਵਿਆ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਕਿਨੂੰ ਦਾਨ। ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਆਪਾਂ ਤਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਐਸੋ ਹੀਰਾ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ, ਜਾਸ ਜਪਤ ਪੂਰਨ ਸਭ ਕਾਮ ਰਹਾਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀਰਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 8 ਲੱਖ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਡਾਇਮੰਡ ਨੇ, ਹੀਰਿਆਂ ਬਦਲੇ ਹੀਰੇ, ਲਾਲਾਂ ਬਦਲੇ ਲਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀਰਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਜਵਾਹਰਾਤ ਨੇ, ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਿਪਤਾ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਬਿਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਸਗੋਂ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ, ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੁੱਲ ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰ ਚੱਲਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਕਦਮ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੱਲ, ਅੱਗੇ ਨਗਰ ਆਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਭੋਜਨ ਛਕ ਲਵੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਗਰ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਕੋਈ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਜਿੱਥੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬਸ਼ੰਬਰਪੁਰ। ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਤੂੰ ਕੁਝ ਖਾ ਪੀਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਭੋਜਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਰ ਨੇ ਪੈਰ ਮਾਰਿਆ, ਚਰਨ ਮਾਰਿਆ ਧਰਤੀ 'ਚ, ਰੇਤ ਜੀ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੈ ਚੁੱਕ ਲਾ। ਬੜਾ ਬੇਕੀਮਤਾ ਲਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚੁਕਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ,
ਬਿਸ਼ੰਬਰਪੁਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੌਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਿਆ, कोई पैसा कोई 2 पैसे कीमत पाए, क्योंकि बिन गाहक गुण बेची है तो गुण सह हो जाए, गुण का गाहक जी मिले तो गुण लाख बिकाए। मरदाना जी नूं पता सीगा कि चीज़ बड़ी बेकीमती है, पर ये लोग अनजान ने उन्हें नहीं बेचिया। फिर एक जानकार जौहरी सीगा, कहंदे भी तू सालसराय कोल चला जा, जिथे तख्त साहब है उत्थे उहदी हवेली सीगी। भाई साहब उत्थे चले गए, उन्हें 100 रुपया दर्शनी भेटा ही दे दी, क्योंकि वो लाल नहीं सीगा, उत्थे वाहिगुरु दा नाम सीगा। दर्शन करदियां सारी 100 रुपया कहंदा भी आ ले दर्शनी भेटा, पर इसका मुल नहीं मेरे पास है। मैं घर भी तेनों दे देवां, दुकान भी दे देवां, तां भी इसका मुल नहीं पा सकूँगा, तो तू आपदा 100 रुपया लै ते काम कर। मरदाना जी बड़े खुश होए। भाई साहब जी जब गुरु साहब कोल आए, मारे कहंदे मरदाना जी तू दस, चीज़ आपां वेची नहीं, रुपया 100 आप लै लिया, ये गल सही है कि गलत है? कहंदा जी गलत है। कहंदे इउं कर भी 100 रुपया नूं वापस कर यार, जानदा साडी चीज़ विकी होवे ते उहदा आपां मुल वटिया होवे, चीज़ भी साडे कोल है, पैसे भी आपां ले ले, गल नहीं ना बनदी। वो लवे कोई ना। 7 फेरे मरदाना जी दे इस तरह महाराज ने लवाए, आखिर वो हंब गया ते 100 रुपया सालसराय जौहरी दे घर सुट के कहन लगा कि तुसीं जानो तुहाडा काम जाने, पर मेरा मालिक पैसे नहीं लैंदा। फतेह बुला के तुर आया, पुछ लिया सालसराय ने कि वो कित्थे बैठे ने। मतलब जेड़े इन्ने त्याग विराग वाले ने उन्हां दे दर्शन करने चाहिए ने। मरदाना जी नाल अदरका सेवक ने अपना भेजा कि गुरु साहब नूं रोकेंगे तो तुर ना जान, मैं भेटा लैके आउंदा हाँ। उन्हें प्रशादा पानी तैयार किया, चंगा सोहना बड़ा थाल सजा के गुरु साहब दे कोल लैके आ गया। इन्हें चेनू अदरके नूं महाराज ने ब्रह्म ज्ञान बख्श दिता, थोड़े समय जी ने हल कर दिता। फिर जब प्रशादी का थाल रख के मत्था टेकिया, गुरु साहब कहणगे लै भाई मरदानिया तू पासे हो के भोजन छक ला। कहंदा जी नहीं महाराज, मैं इन्ना भी माड़ा नहीं हाँ, ठीक मैनू भावें भुख लगी है, पर तुसीं तां भोग लाया नहीं, प्रशाद तां तुहाडे लई आया है, ते मैं तुहाडे तो पहलां किवें छक लवां? मारे कहंदे कोई नहीं, जद मैं कह रही हाँ भोग तो गुरु लगना ना, ते गुरु कह रहा तू खा। आप थोड़े बचन करने हैं, सानू थोड़ी देर लग सकती है, असी ब्रह्म ज्ञान के बचन करने ने, तू आपका प्रशादा छक। कहंदा जी नहीं महाराज, मैं तुहाडे तो बगैर किवें छकूंगा? मारे कहंदे चंगा फिर इउं करदा, मैं आपका हिस्सा वखरा कढ़ देना, तू इउं कर मेरा हिस्सा वखरा कर दे, आ सालसराय जौहरी का हिस्सा वखरा कढ़ दे, अदरके दा हिस्सा वखरा कढ़ दे, ते तू आप छक ला। यो महाराज ने मरदाना जी नूं भोजन छकन लई हुक्म किया। सालसराय जौहरी नूं कहन लगे, हे जौहरी तू इन्ना सियाणा हो के पत्थरां दी कीमत दे विच अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा, जो रब ने तेरे हिरदे विच हीरे तो भी अमुल्क वाहिगुरू नाम बख्शिया, उहदी तू पहचान ही नहीं करदा। नौ निधि अमृत प्रभु का नाम देही मैं इसका विश्राम, कीर्तन निर्मोलक हीरा आनंद गुणी गहीरा, अनहद बाणी पूंजी संतन हथ राखी पूंजी। किसी बिरले नूं इसकी पहचान है।
इहो महाराज ने सालसरे जौहरी ते किरपा की, उन्होंने भी ब्रह्म ज्ञान बख्शिया, मंजी बख्शी। आखिया तेरा सेवक तेरे नालों वध प्यार वाला शरधा वाला है। मंजी तैनू देनी सी, पर तेनों मालक जान के सत्कार दिंदे आ। आप तो बाद आपदे किसी धी पुत नूं गद्दी ते नहीं बिठाउणा, आपदे सेवक नूं ही गद्दी देनी है। इयों महाराज ने सालसराय जौहरी नूं वाहिगुरु नाम की महिमा प्रगट करके दिखाई सीगी। ते मरदाना जी नूं भी आख्या मरदाने लाल नहीं है, ये वाहिगुरु नाम है। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। इयों साडे रोम रोम दे विच वाहिगुरु नाम पसरिया है, जो साडे लोक परलोक दे विच काम आने वाला है। यही साडी रोजी है, यही साडी रोटी है, यही साडे कपड़े ने, यही साडी पॉकेट मनी है, यही साडा घर बार है, यही साडा फ्रिज टीवी, यही साडा गड्डियां मोटर आवाजाई का साधन। लोग जहाज से चढ़ने वास्ते 50-50 लाख रुपया हाथ च फड़ के तुरे फिरते हैं, फिर बेचारे धक्के खा के घर नूं मुड़ आउंदे। पर महाराज दा जो जपजी साहब है, गुरु साहब की बाणी कथा कीर्तन वेखो, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ पढ़न वालियां नूं विचारन वालियां नूं पंछियां दी तरह इत्थे भी उड़ाई फिरदी है, ते परलोक दे विच भी जीवात्मा खंभां दी तरह, जिस तरह खंभ लगे होंदे पंछी नूं, इस तरह उड़ के जाके गुरु नानक साहब के चरणों च पहुँचेगी। क्योंकि गुरप्रताप सूरज ग्रंथ विच महाराज ने दृष्टांत दिता है कि बाणी बाणा पंख पछाणो, सिंह गुरु दा पंछी जाणो। एक बाणी ते एक बाणा, ये खंभ ने गुरसिख दे, जिहदे नाल उड़ जाके आपदे गुरु के चरणों में पहुँचया जा सकता। धुर की बाणी आई तिन सगली चिंद मटाई, जितों ये धुर की बाणी, ये महाराज का नाम सचखंड दरगाह विचों आया है। उत्थे ही पढ़न वाले नूं विचारन वाले नूं लै जावेगा। अनल पंछी दे खंभां दा दृष्टांत दे के कलगीधर महाराज ने आपदे तीरां दे नाल लवा के ये समझाया सीगा। तो इस वास्ते साडे रोम रोम दे विच महाराज दा नाम बस रहा है। हरि नाम नूं असीं उचारण करदे हां। सतगुर पूरा कीनो दान, पूरिया सतगुरां ने ये नाम सानू दान दे विच दिता है। आपां विचार कर रहे सी, इहदा मुल नहीं कोई तार सकदा। साईं नाम अमोल कीम न कोई जान दो, जिन्ना भाग मथा है से नानक रंग मान दो। तुहाडे सामने तुसीं देख ही रहे हो, आ हुणे 2 बोरियां भर के लैके गए सेवादार। ये आटा दाना दुध पानी रसद दियां नहीं ने, ये महाराज दे नाम दियां ने। अमृत वेले मैं 4 बजे वेख्या भी सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु। दो माइयां प्रशादे पका रही, ते घर दे विच तुसीं चाह मंग के वेखो, वो भी दिन जड़े बनती है। रोटी पानी का 10-11 बजे तैयार होंदा। फिर इत्थे गुरु के लंगर दे विच सारी सारी रात सारी सारी दिहाड़ी 24 आवर देसी घ्यू का लंगर, लड्डू जलेबियां कड़ा प्रसाद वरत रहा। ये भोजन पानी नहीं वरत रहा, ये महाराज का नाम वरत रहा है। प्रतख ही अमृत वेले तो लैके शामां तक रात तक वेखो कथा कीर्तन दा नाम दा प्रवाह चलना है। रागी ढाडी प्रचारक महाराज दे पाठी सिंह वेखो कंटिन्यू अखंड पाठ साहब की रौला लाउंदे 15-15 16-16 अखंड पाठ, जिहदी 1.25 साल की वारी है। आम नॉर्मल भी पाठ कराउणा होवे, लड़ी वाले तां भला 20-25 साल बाद वारी आउंदी है। किन्नी महाराज की कृपा। ये सब बरकतां धुर की बाणी दियां।
बाहो शास्त्र बाहो सिमरती पेखे सरबट ढोल पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल कंजन स्यों बाइया नहीं तोल मन दे राम लिया है मोल। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਡ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ 'ਚ ਮੋਤੀ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਗੋਡ ਗਿਫਟ ਹੈ। ये कोई मुल तार के नहीं मिलता है। नाम रतन मेरा भंडार प्रभु दे नाम रूपी रतन कीमती पदार्थ दा मेरे पास भंडार खजाना जमा हुआ पिया है। पियो दादे का खोल डिठा खजाना ता मेरे बन भया निधाना। रतन लाल जाका कशु न मोल भरे भंडार अखूट अतोल। खावे खर्चै रग मिल भाई टोट न आवे वध हो जाई। या गुरां ने प्रभु का नाम रूपी रतन मेरे हृदय रूप भंडारे विच देना कीता है। अगम अमूला पर अपार जो नाम मन बाणी शरीर करके गमता तू रहत बेकीमता अति अपरिअपार। बेअंत दो बेअंत गुण देने वाला है या प्रकृति अपर उरे है ते नाम प्रकृति दे पारावार तो परे रहत करने वाला है। नाम के तारे सगले जंद आ पखा नहीं चल रहा महाराज दा नाम हवा दे रहा। ਇਹ ਸਭ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਾ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਚਮਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਕੇ ਤਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੰਦ ਨਾਮ ਕੇ ਤਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਨਾਮ ਕੇ ਤਾਰੇ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਨਾਮ ਕੇ ਤਾਰੇ ਸੁਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ। ਇਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਸੋ जो एक जबान दे नाल कथन कीती नहीं जा सकती। हमरी जिह्वा एक प्रभ हर के गुण अगम अथाह हम क्यों कर जपे आनिया हर तुम वड अगम अगाह। रहा विश्राम देकर फरमान कर देने नाम हमारा निचल धनी। हमारे साडे ताई परमात्मा का नाम ही अचल धनवान बनाने वाला है। या प्रभु का नाम ही साडे ताई अचल स्वरूप अते सब दे मालक प्रभु की प्राप्ति कराने वाला है। या नाम करके ही असी ब्रह्म ज्ञान रूप अचल धन वाले हुए हैं। नाम की महिमा सब मह बनी। प्रभु दे नाम दी महिमा वडियाई सारे लोका खंडा ब्रह्मंडां दे विच बाणी फब रही है। नाम हमारा पूरा साह साडे पास प्रभु दा नाम ही पूर्ण शाहूकार रूप है। नाम हमारा बेपरवाह जिस करके सारे दैवी गुण रूपी धन की प्राप्ति हुंदी है। प्रभु दे नाम ने ही साडे ताई बेमुहताज कीता है। या साडे हिरदे विच बेमुहताज प्रभु दा नाम वसदा है। जा तू मेरे वल है तां क्या मोशंदा तुद सब किश मैनू सौंपिया। ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਲక్ష్ਮੀ ਦੌੜ ਨਾ ਆਵਈ ਖਾਏ ਖਰਚ ਰਹੰਦਾ। ਇਹ ਵੈਰੀ ਮਿੱਤਰ ਸਭ ਕੀਤਿਆ ਨੇ ਮੰਗੇ ਮੰਦਾ ਲੇਖਾ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਛਈ ਜਾਂ ਹਰ ਬਖਸ਼ੰਦਾ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਮਿਲ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦਾ। ਸੋ ਸਭੇ ਕਾ ਸਵਾਰਿਆ ਜਾਂ ਤੁਧ ਪਾਵੰਦਾ। ਇਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ। नाम हमारा भोजन ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक
का ब्रह्म ध्यान, आ जो कथा है, कीर्तन है, गुरबाणी का पाठ है, ये एक अमृत भोजन है। थाल विच तीन वस्तु पई हो। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का एक थाल है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ तीन वस्तुआं वाहिगुरु गुरु नानक साहब ने परोसियां होईयां ने। थाल विच तीन वस्तु पईओ, सत संतोख विचारो। एक सत है, एक संतोख विचार ना करो या ब्रह्म दी विचार समझो। तीसरी वस्तु केड़ी है? अमृत नाम ठाकुर का पयो। जो ठाकुर मालक वाहिगुरु का अमृत सरीखा नाम है, वो इस दे विच विराजमान है। जिसका सबसे आधारो, जिसका सबना नू आसरा है। जे को खावे, जे को पुंज, तिसका होई उधार। जिहड़ा आप खांदा दूजियां नू छकाउंदा है। अखंड कीर्तन दिन भोजन चूरा, चूरी बनी हुई है, चूरमा है। चूरी दे विच खंड हुंदी है, घिओ हुंदा है, ते फिर चूरी बनदी है। इहदे च प्रेम दा घिओ है, भगती दी खंड है, ते जिहड़ा प्रसादा आटे दा बनिया हुंदा, ज्ञान दा आटा है, मैदा है। ऐसी चूरी महाराज ने बना के दिती है। सो इस वास्ते ਇਹੋ नानक कीनो चोला। चोला नाम भी चूरी का है, जिहड़ा घिओ पा के प्रसादे नूं खंड पा के चोरी की जावे। वो महाराज ने पिंड दी सरपंचनी ने श्री गुरु अर्जन देव जी नूं ये चोला बना के पेश किया। ਉਹਦਾ नाम सी भैणी। महाराज कहंदे भैणी की होया भला? वो चोले तो चोला साहब ही बनाता। पिंड वाले कहन लगे जी सरकारी दफ्तरां दे विच मामला तारन जाईदा ते उत्थे रजिस्टरां च कौन बदलाऊगा? मारे कहंदे तुसीं भैणी नहीं कहना, तुसीं कहना है कि असीं चोले तो आए हाँ। तो रजिस्टरां दे विच नाम ही सारा चेंज हो गया। तो ऐसा ही महाराज ने चोला साहब बना के दिता है। ये भगती दी खंड पाई है, प्रेम दा घिओ पा के, ज्ञान दा मैदा पा के, श्री गुरु ग्रंथ साहिब रूपी थाल दे विच ये महाराज ने ज्ञान दा भोजन बख्शिया है। अमृत नाम, जो अमृत वर्गा मिठा महाराज दा नाम। ठाकुर का पयो, जिसका सबसे आधारो। जितना रोटी खाने तो शरीर चलता है, प्रसादा ना छको। अजकल मौसम चेंज हो रहा, ठंड लगूगी, बुखार चढ़ जाऊगा, कमजोरी आजू, सैल घट जाएंगे। इसलिए एक दिन में घट्टो घट 3 बार प्रसादा लाजमी होना चाहिए। 2 बार दुध पियो, मुड़ के जो बकरी लभदे रहना, ना लभे तो ना शरीर कायम होए। गां मझ दा ही दुध पियो। सो आपदे शरीर नूं सावधान रखो। शरीर की खुराक प्रसादा है, दुध पानी है, ते आत्मा की खुराक ये महाराज की कथा, महाराज का कीर्तन, गुरु की बाणी का नितनेम। जे आप नितनेम नहीं करांगे, संगत नहीं करांगे, आत्मा ये भी सनपात बुखार के रोग नाल ग्रसी जाऊगी। डेंगू हो के ये भी सैल घट जाएंगे, ये भी फिर चढ़ाई कर जूगी। कमजोर हुंदी हुंदी अंत नूं निकर के नरकां च डिग पऊगी, बड़ा दुख भोगूगी। इस वास्ते सावधान, एकाग्र चीत। रोटी लिए आप भज दौड़ करते हैं, दिन रात कमाइयां करते हैं, बड़े बड़े सोहने पदार्थ तिन्ने टाइम बना के आपदे हथीं छकदे हैं, रिश्तेदारां नूं छकाउंदे हैं, पार्टियां करते हैं। खाण पीण दे उपर ज़्यादा जोर दिता जाता, ते महाराज दे नितनेम दे उपर भी, आत्मा की खुराक उपर भी जोर दिओ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब रूपी थाल परोसिया होया कादे लई? गुरु के लंगर विच भोजन किन्ना लई है? महाराज दीआं संगतां वास्ते। साध संगत में गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश, कथा कीर्तन, एडा समागम वेखो किहड़ी किहड़ी दूर तो रागी ढाडी प्रचार कर रहे हैं। किन्ना लई? संगत वास्ते।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠੋਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਭੋਜਨ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ? ਆਪਾਂ ਛਕਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ ਜੇ ਕੋ ਪਹੁੰਚੈ ਤਿਸ ਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ। ਖੁਰਾਕ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਚੱਲਦਾ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣ ਤੋਂ ਕਲਿਆਣ ਹੁੰਦੀ, ਮੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਸਤ ਤਜੀ ਨਹਿ ਜਾਈ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਰਾਖਿਓ ਰਤਾਰੋ। ਤਮ ਸੰਸਾਰ ਚਰਨ ਲਖ ਤਰੀਐ, ਸਭ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਬਸਾਰੋ। ਇਹ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 2:30 ਵਜੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, 4 ਵਜੇ ਕਾਊਂਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵੀ ਗਏ। ਅਜੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ 9-10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਕਿੰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਕੁਇੰਟਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ 3-4 ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਬਣਦੀ ਦਸਵੀਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਕੋਈ ਆਮ ਮੰਨ ਲਓ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤੀ ਭੁੱਖ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਭੋਜਨ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਭੋਜਨ ਦੇ ਭਾਵ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਹਮਾਰਾ ਭੋਜਨ ਭਾਵ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਾਓ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਭੋਜਨ ਹੈ। ਨਾਮ ਹਮਾਰਾ ਮਨ ਕਾ ਸੁਆਉ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਸੁਆਉ, ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਰੂਪ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਸਤ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੁੱਲੇ ਵੀ ਕਿਉਂ? ਸੁਖ ਵਿਸਰੈ ਜੇ ਘਾਲ ਨਾ ਪਾਨੈ, ਸੁਖ ਵਿਸਰੈ ਜੇ ਕੀਆ ਜਾਣੈ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੈ ਜਿਨ ਸਭ ਕਿਛ ਦੀਆ, ਸੁਖ ਵਿਸਰੈ ਜੇ ਜੀਵਨ ਜੀਆ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੈ ਜੀ ਅਗਨ ਮੈਂ ਰਾਖੈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਉਹ ਵਿਰਲਾ ਲਾਖੈ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਸੈ ਸੁਖ ਮੰਦਰ, ਤਿਸੈ ਧਿਆਈ ਸਦਾ ਮਨ ਅੰਦਰ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗ੍ਰਹਿ ਸੰਗ ਸੁਖ ਬਸਨਾ, 8 ਪਹਿਰ ਸਿਮਰੋ ਤਿਸ ਰਸਨਾ। ਨਾਮ ਲੈਤ ਅਨਹਦ ਪੂਰੇ ਨਾਦ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਜਪਣ ਕਰਕੇ ਹੱਦ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਇੱਕ ਰਸ ਵਾਜੀਆਂ ਦੀ ਧੁਨ ਪੂਰੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਰਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਹਮ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਨਾਮ ਨਾਉ ਨਿਧ ਪਾਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 9 ਨਿਧਾਂ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਰਿਧ ਸਿਧ 9 ਨਿਧ। ਰਿਧੀ ਆਨੰਦੀਆ ਤੋੜਤਾ, ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਕਤੀ 9 ਨਿਧੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਖਜ਼ਾਨੇ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤਤ ਬੁੱਧ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਨਾਮ ਸਿਓ ਬਨ ਆਈ। ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਬਣ ਆਈ ਹੈ। ਧਨਵੰਤੇ ਸੇਈ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨਵਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਖੀ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ? ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੈ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ। ਉਚਾਰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਧਨਵੰਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਭਾਗਟੜੇ ਹਰ ਸੰਤ ਤੁਮਹਾਰੇ। ਭਾਗਟੜੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਸੰਤ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ।
पागठड़े हर संत तुम्हारे, जिन कर तन हर नामा। परवान गणी से ये आए, सफल तना के कामा मेरे राम। हर जन कहूँ बल जाई, केसा गाकर चबर ठुलावा, चरण धूड़ मुख लाई। तेरे संत जेड़े धनवंत नाम के बनजारे, किन ही बनजिया कांसी तांबा, किन ही लौंग सुपारी। संतो बनजिया नाम गोबिंद का, ऐसी खेप हमारी हर के नाम के व्यापारी। हीरा हाथ चढ़िया निर्मोलक, छूट गई संसारी। जो रब दे प्यार वाले संत शाहूकार नाम दे खजाने दे मालक ने, संतन हथ राखी पूंजी। उन्हां को कोई आपदा नहीं है, महाराज ने आपदे खजाने दी चाबियां उन्होंने फड़ा दित्तियां। संतां नूं शहीदां नूं आपदे घर दीयां कुंजियां फड़ा दित्तियां भी लो, खावे खर्चे रल मिल पाई, तोड़ना वे बुद्ध, जिन्ना मर्जी खाओ खर्चो, कोई घाटा नहीं आउंदा है। जिमें जो धर्म सपत्नी हुंदी है जां राजे दी राणी हुंदी है, बाबा जी साडी लाइट बुझाती, तो ओहदे हत्थ दे विच सारी मलकीयत हो जाती है। इस प्रकार जो रब दे प्यार वाले ने, महाराज दे संत ने, उन्हां दे हत्थ विच ये सारे खजाने दियां महाराज ने कुंजियां फड़ाइयां होईयां ने। पंजां प्यारियां ने वेखो, कलगीधर महाराज दशमेश पिता दे चरनां दे विच आप दे पावन शीस पेटा करके ते महाराज कलगीधर जी दे पासों नाम दी दात प्राप्त की। सो श्री जपजी साहिब दे विच जो गुरु नानक साहिब दे बचन ने, पंज परवान पंज प्रधान, पंज प्यारे परवान ने, पंज प्यारे ही प्रधान हैं। गुरुद्वारे दे प्रधान पंज प्यारे ने। अरदास दे विच आपां गुरु साहिबां दे नाम तो बाद पंजां प्यारिਆਂ दे नाम लैंदे आ, ते जो कड़ा प्रसाद दा वरतारा वरतदा है, सब तो पहला पंजां प्यारिਆਂ दा छांदा कढ़िया जांदा है, और उस तो बाद जो हजूरी विच ग्रंथी सिंह बैठा हुंदा उहदा छांदा कढ़िया जांदा है। इहदा मतलब ये है, तो इस वास्ते ये गुरु साहब ने आप सत्कार दिता है, आप दी हजूरी विच आप मान तान दिता है। निमाणिया दा मान, निताणिया दा तान जो होया महाराज, जिस नीच को कोई ना जाने, नाम जपत वो चौं गुंड माने। सो गुरु महाराज साहब सच्चे पातशाह ने आप कृपा की है, जिन्हां दा कोई मान नहीं, निमाणी मान करे तुद भावे, और खेती चक चक आवे जावे, उन्हां दा आप मान बनिया है। जिन्हां दा कोई तान बल नहीं, उन्हां दा आप बल बनिया है। तू मेरी ओट बल बुध धन तुम ही, तुम है मेरा परवार है। मैं गरीब सच टेक दूं, मेरे सतगुर पूरे, देख तुम्हारा दर्शनो मेरा मन धीरे। सो जिन्हों कोई भी नहीं सी जानदा, आठ पहर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रगट नहीं छपै। वो महाराज का नाम जप के गुरु साहब की बख्शिश लैके चौं कुंडा में प्रगट हो गया। ऐसी महाराज ने कलगीधर ने कृपा की, को बाटे चमर छका के चौं वरना आपदी चरणों नाल मिलिया, ते नाम की दात दे के महान बना दिता। ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मुकत मोहि तारै। ऐसे गुरु तो बलिहार कुर्बान जाइए, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे।
हे मेरे लाल प्यारे वाहिगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी, ਇਹੋ जी कृपा तेतों बगैर होर कोई कर सकदा? दसो। अज तक गुरु गोबिंद सिंह तो बगैर दूजा कोई होर जे होया तां दस दिओ। जिन्ने जात पात ना जनाई होवे, जात पात का भेद मिटिया होवे। महाराज ने ठोक के जवाब दे दिता भीम चंद वर्गियां नूं। वो कहंदे साडे लई बाटा वखरा तैयार करो। अमर छकण लई तैयार हो गए सीगे। कहंदी असीं उच्ची सुच्ची कुल वाले हाँ। महाराज कहंदे जाओ, तुहाडे वर्गे सिखां दी नहीं सानूं लोड़, आपां तां चौं वरनां नूं मिलना है। महाराज ने अमृत छका के कोई भिन्न भेद गल्लां करनियां सुखालियां हुंदियां ने, पर कोई फर्क महाराज ने जाती तौर पर प्रैक्टिकल तौर पर भी नहीं रखिया। वेखो भाई जीवन नूं सिंह बनाया अमृत छका के। जिहड़ा भाई जैता सी पिता जी का सीस लियाउण तो छाती ना ला के आख्या रंगरेटा गुरु का बेटा। तो इसे तरह भाई संगत सिंह नूं मान बख्शिया। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। गल्लां करन असीं बड़ियां हुण करदे हां, पर महाराज की बराबरी नहीं कोई कर सकता जी। श्री गुरु अमरदास महाराज ने लंगर की प्रथा इसे लिए कायम की सी। अकबर भी पंगत च बह के रोटी खा के गया। गुरुद्वारे बड़ा टेबल कुर्सियां का की मतलब होया ते वखरा दा की मतलब होया। महाराज की पंगत च बैठ के इको बराबर, ताकि मन में मान ना आवे। पहले पंगत पीछे संगत का असूल महाराज ने कायम किया। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। मरदाना मरासी जात मुसलमान जात आप दे कोल रबाबी गुरु नानक साहब ने रखिया। मिसाल कायम कर दी, गुरुआं तो बगैर कोई बख्शिश नहीं कर सकता। गरीब नवाज गोसाइया मेरा माथा शदर धरे रहाओ। जाकी शोध जगत को लागे तां पर तू ही डरे। नीचा ऊंच करे मेरा गोविंद काहू ते ना डरे। जिस पापी को मिले ना ढोई सरन आवे ता निर्मल होई। पंजां प्यारियां दी जात वेखो, उन्हां दा इलाका वेखो। ना तो इलाके का फर्क साडे मन में, एक तो इलाके का फर्क नहीं जाऊगा, एक जात का नहीं फर्क जाऊगा। 100 वारी भावें असीं अमृत छक लईए पर यह मन दे विचों नहीं जाऊगा। फलाने इलाके का कोई तू मेरे इलाके का, वो फलाने इलाके का, इस तरह मन दे विच फर्क है। पर महाराज सच्चे पातशाह ने पंजां प्यारिਆਂ ਦੀ चोण क्वालिटी के आधार पर की। उन्होंने क्वालिटी परख की है कि इन्हां दे विच सो किन्नी धीरज है, किन्नी जरन शक्ति है, किन्ना वचन मनन की समर्थ है, किन्नी शरधा, किन्ना प्यार, किन्ना इन्हां च सिदक है, किन्नी दृढ़ता है। ये कुछ वेख के महाराज ने पंजां प्यारिਆਂ की चोण करके गुरुद्वारे के प्रधान बनाया। पंच परवान पंच प्रधान पंजे पावै दरगह मान। पंजे सोह है दारा जान पंचा का गुर एक ध्यान। पंच नाम है जिस तरह पंच सरपंच होंदा। गुरुद्वारे के पंच सरपंच महाराज के संत महात्मा गुरु के सिख ने। बाबा हनुमान सिंह जी ने वेखो ऐसा सतगुरु जे मिले तिसनों सिर सौंपिया विचों आप जाए। जाओ तो प्रेम खेलन का चाओ सिर धर तली गली मेरी आओ। इत मार्ग पैर तरीजै सिर दीजै काम ना कीजै। सिर तली ते रख के फिर महाराज की गली दे विच कदम रखिया। गुरसिੱਖੀ नूं धारण किया। बाबा दीप सिंह साहब जी, भाई मनी सिंह, भाई मती दास, भाई सती दास, भाई दयाला, भाई तारू जी। वेखो ये गुरु घर दे प्रधान ने, यही प्रमाण ने जिन्हों ने सिर दे के महाराज के नाम के खजाने नूं प्राप्त किया। यही शाहूकार हैं। वेखो किन्ने खजाने भरे हुए ने, अज तक सब इन्हां तो भरोसा रहे हैं। महला पंजवा। इस पावन शब्द विच सतगुरु जी प्रभु के सन्मुख बेनती करन दा ढंग तरीका दसदे हन। मेरा पिता तू है मेरा माता। पंजवें
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪੈਰੋਂ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਭਿੰਨ ਨਿਮਿਤ ਤੇ ਉਪਾਦਾਨ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਰੂਪ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਮਾਂ ਉਪਾਦਾਨ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਨਿਮਿਤ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੱਕੜੀ ਆਪਣੇ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਲਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਉਪਾਦਾਨ ਕਾਰਨ ਤੇ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਨਿਮਿਤ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਹੀ ਅਭਿੰਨ ਨਿਮਿਤ ਉਪਾਦਾਨ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਨ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਠਾਕੁਰ, ਹਉ ਦਾਸ ਤੇਰਾ। हे प्रभु, तू मेरा मालिक है ਅਤੇ मैं तेरा दास सेवक ਹਾਂ। ਤੁਝ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਹੀਂ ਕੋ ਮੇਰਾ, तेरे तो बगैर हे वाहिगुरु और कोई भी मेरा सहायक नहीं है। ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਹੁ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤ। हे परमात्मा, तुसी अपनी कृपा मेहर ਦੀ दृष्टि करके ये मेरे ते दात बख्शिश करो जी के। ਤੁਮਰੀ ਉਸਤਤ ਕਰਾਓ ਦਿਨ ਰਾਤ। मैं दिन रात ਤੁਹਾਡੀ ਉਸਤਤ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਥਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਰਤਨ ਬਣ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਗ ਰਹਾ। तेरे कमन कमन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा बर न सको, तू ठाकुर उच भगवान। विसर नाही दातार, अपना नाम देहो। गुण गावा दिन रात, नानक चाओ एहो। हम भीखक बेखारी तेरे, तू निजपत है दाता। ਉਹ ਦਿਆਲ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮੰਗਤ ਜਨ ਕੋ, ਸਦਾ ਰਹੂੰ ਰੰਗ ਰਾਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅਵਿਦਿਆ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਦਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇਰੀ ਜਤ ਤੂੰ ਬਜਾਵਨ ਹਾਰਾ। हे प्रभु, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਾਜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਜੰਤਰੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਬੋਲਾਵੇ ਹੈ ਤਿਉਂ ਬੋਲੇ ਹੈ ਸੁਆਮੀ। ਕੁਦਰਤ ਕਮਨ ਹਮਾਰੀ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਜਸ ਗਾਇਓ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਅਤ ਪਿਆਰੀ। ਹਮ ਤੇਰੇ ਭਿਖਾਰੀ, ਦਾਨ ਦੇ ਦਾਤਾਰਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਮਣ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਜਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਾਧਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਮੱਸਿਆ ਪੁੰਨਿਆ ਸੰਗਰਾਂਦ ਨੂੰ ਖੀਰ ਕੜਾ ਖਾਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਜਜਮਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮੰਗਤੇ ਹਾਂ, ਭਿਖਾਰੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਥੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਧ ਅੱਗੇ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਖੜੀ ਸਭ ਹੋਈ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮੰਗਤੀ ਰੂਪ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ ਭਿਖਾਰੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਰਤਾ, हे ਕਰਤਾ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਜਜਮਾਨ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਜਜਮਾਨ। ਇੱਕ ਦਖਣਾ ਹਉ ਤੈ ਪੈ ਮੰਗੂ। ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਖਣਾ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਦੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ ਗੁਰ ਤੇਰਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਆਸੀ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਚਿਤ ਮੋਹਣ ਦਿਨ ਨੀਤ, ਖੋਲ ਕਬੜ ਗੁਰ ਮੇਲੀਆ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਸੰਗ ਮੀਤ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਰੰਗ ਰਸ ਬਾਣੇ। हे परमात्मा, तेरी कृपा करके ही तेरे प्रेम दे रस नूं माणदे हां। ਘਟ ਘਾੜੇ ਅੰਤਰ ਤੁਮ ਹੈ ਸਮਾਣੇ। ਸਰੀਰਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਰੀ
कृपा ते जपिए नाओ। हे प्रभु तेरी मेहर तो ही तेरा नाम जपीदा है। साध संग तुमरे गुण गाओ। फिर श्रेष्ठ गुरमुख जਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੁਆਰਾ ਤੇਰੇ ਹੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। तुमरी दया ते होए दर्द विनाश। हे परमात्मा तेरी दया मेहर तो ਵਿਦਿਆਦਿਕ ਸਭ ਦਰਦ ਪੀੜਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾ ਕੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤ ਬਨੈ ਢੋਈ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇ। ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਨ ਸਾਖ ਬੇ ਭਜ ਖਲੇ। ਸਭੋ ਭਜੈ ਆਸਰਾ ਚੁੱਕੈ ਸਭ ਅਸਰਾਓ। ਚਿਤ ਆਵੈ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਗੇ ਨ ਤਤੀ ਵਾਓ। ਸਾਹਿਬ ਨਿਤਾਣਿਆ ਕਾ ਤਾਣ ਆਏ ਨ ਜਾਈ ਥਿਰ ਸਦਾ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਹਰ ਜਾਨ ਰਹਾ। ਜੇ ਕੋ ਹੋਵੇ ਦੁਬਲਾ ਨੰਗ ਭੁਖ ਕੀ ਪੀਰ। ਦਮੜਾ ਪੱਲੇ ਨਾ ਬਵੈ ਨਾ ਕੋ ਦੇਵੈ ਧੀਰ। ਸਵਾਰਥ ਸੁਆਉ ਨਾ ਕੋ ਕਰੇ ਨਾ ਕਿਛ ਹੋਵੇ ਕਾਜ। ਚਿਤ ਆਵੇ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਾਂ ਨਿਚਲ ਹੋਵੇ ਰਾਜ। ਜਾਗੋ ਚਿੰਤਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦੇਹੀ ਵਿਆਪੈ ਰੋਗ। ਗ੍ਰਸਤ ਕੁਟੰਬ ਪਲੇਟਿਆ ਕਦੇ ਹਰਖ ਕਦੇ ਸੋਗ। ਗੌਣ ਕਰੇ ਚੌਕੁੰਡ ਕਾ ਘੜੀ ਨ ਬੈਸਨ ਸੋਏ। ਚਿਤ ਆਵੇ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਾਂ ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਹੋਏ। ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ। ਆਠ ਪਹਿਰ ਆਰਾਧਿਆ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨ ਰਹਾ। तुमरी माया ते कमल विगास। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਤੋਂ ਦਰਦਾਂ ਪੀੜਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੱਖ। ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੋਹਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਆਦਿ ਵਿਆਧੀ ਉਪਾਧੀ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅਤੇ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਅਵਿਦਿਆ ਦੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਹਿਰਦਾ ਰੂਪ ਕਮਲ ਕਰੁਣਾ ਮੁਦਤਾ ਮੈਤਰੀ ਉਪੇਖਿਆ ਆਦਿਕ ਪੰਖੜੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਖੇਡਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਓ ਗੁਰਦੇਵ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਪੂਜਨੀ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਐ ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿ ਧਾਰੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਦਾ ਮੁਕਤ ਰੂਪ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਵੈਰਾਗੀ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਗੁਲਾਮ। ਗੁਲਾਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲਓ। ਫਿਰ ਮਾਂ ਨੇ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਬਣ। ਚੱਲ ਸ਼ਾਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਛਕਾਓ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਬਹਾਦਰ ਹੈ। ਆ ਫੜ ਸਾਡੇ ਤੀਰ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ। ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਵੈਰਾਗੀ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬਹਾਦਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਉਹਨੇ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਵੇਖੋ ਆਮ ਵਿਰਾਗੀ ਸਾਧੂ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਕੇ ਵਜੀਦੇ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਟਾਪਾਂ ਮਗਰ ਪਾ ਕੇ ਤੂੰ ਕੜੀਸ ਕੜੀਸ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਥਾਪਿਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਿਰ ਮਿਸਲਾਂ ਕਾਇਮ ਹੋਈਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਥੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿਤਾਰਾ ਚਮਕਿਆ, ਜਿਨੇ 40 ਸਾਲ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਮਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੰਦੇ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿਵਾਏ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁੰਗਾ ਜੇ ਵੀ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੋਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਏ।
दर्शन जाकी निर्मल सेव। जिस गुरु का दर्शन सहत ज्ञान फल दे है, दर्शन करने वाला खाली नहीं जाता है। सफल दर्शन अकाल मूरत प्रभ है पी होवन हर। अते महाराज कहते जाकी निर्मल सेव, जिस दी सेवा टहल ये भी उज्जल करने वाली है। दया करहु ठाकुर प्रभ मेरे। इसलिए यही साडी अरदास है गरीबां निमाणियां दी, ये मेरे ठाकुर मालिक परमात्मा तुसी अपनी दया करो, अपनी मेहर करो, दया करो दयाल, अपनी सिफत देहो। इथे हाई नूं औंकड़ है, दर्शन देख निहाल नानक प्रीत एह। इथे हाहा मुक्ता है, पहला औंकड़ है फिर मुक्ता है। जिथे मुक्ता उथे मुक्ता बोलना, जिथे औंकड़ उथे औंकड़ भी बोलना है। तो इस तरह ये महाराज आप कृपा करो। दया करहु ठाकुर प्रभ मेरे। ये मेरे मालिक मेरे वाहिगुरु मेरे ते दया करो जी, अपनी सिफत करनी सानू बख्श देवो, अपने दर्शनां दा दान देवो। गावै नानक नित तेरे। सतगुरु अर्जन देव महाराज जी कथन करते ने कि जिस करके मैं दास निता प्रति तेरे गुणां नू हमेशा ही दिन ना वेखां रात ना वेखां। कई ये तर्क करते ने भी रब नूं भी सौन लैण दिओ, महाराज तेरे चरणों च अरदास है मैं दिन रात तेरे गुण गावां। तर्कशील कहंदे भी रब नूं भी सौन लैण दिओ। तुसीं वेखो रेल गड्डियां दिन रात नहीं चलदियां। जे हजूर साहब जाना होवे ते रेल गड्डी नूं आपां कहीए भी तूं सौ जा, जे रेल गड्डी सौ गई तो आपां कित्थे जाना, किवें पहुंचांगे? कलकत्ते पटना साहब किवें पहुंचांगे? दिन रात चलूगी तां ही पहुंचांगे। जे रेल गड्डी का ड्राइवर सौ गया फिर तो साडी सत श्री अकाल हो गई। एयरपोर्ट ते बंदा गया है, पहुंचना अमरीका है आस्ट्रेलिया, वो परां दूसरे पासे। ते जे हवाई जहाज नूं कहे भी तूं सौ जा, पायलट नूं आके भी नींद आई तूं सौ जा, भी रात पै गई, उत्थे रात पैंदी नहीं। टाइम किते कुछ है किते कुछ है। फिर गुरुद्वारे बड़ा ये तर्क करने की लोड़ है। ठीक है सानू नींद आई आप सौ सकते हैं, पर सतगुरु जागता है देव, ये तो दिन रात जागता है। रब ने भला क्यों सोना होया? सचखंड का कीमता की टाइम है। तो इस वास्ते ये नास्तिक पुणे वालियां नशरतिक पुणे वालियां गल्लां करके आपदा मन घटाउणा नहीं चाहिए। या किसी दियां गल्लां सुन के मैनूं तां कोई पुछे भी जपजी साहब जां नितनेम का की टाइम, मैं तो यही बेनती करदा आ जिहड़े सिक्योरिटी गार्ड ने बेचारे सारी सारी रात जागते रहिंदे, उन्हां घड़ी आराम भी करना हुंदा। जदों बंदा सौ के उठे भावें दोपहरे 12 बजे उहदा उसे वेले ही अमृत वेला है। अमृत वेले का भाव है कि जदों दिमाग ते शरीर रिलैक्स हो जाए, तुसीं नहा धो के रिलैक्स हो गए हो, आपदा आराम करके उदों नितनेम कर सकते हो। 2 बाणियां का टाइम है। मैं तो हरेक नूं यही बेनती करदा, सिर्फ 2 बाणियां, एक कीर्तन सोहला वो सौन लग्या पढ़ना, तुरे फिरदियां जां टाइमों बेटाइम नहीं, ते दूसरा सोदा रह रस का पाठ। ते जे तुसीं मैनूं पुछो मैं तो इन्हां दा भी टाइम वधा घटा लईदा। किते कोई एमरजेंसी होवे सोदर दी पौड़ी पढ़ लो, जदों टाइम लगे तो उदों नितनेम थोड़ा छड्डना। जे नींद आ गई है जां रात सुते ही नहीं तो कीर्तन सोहला जदों सौन लगे भावें दोपहरे पढ़ लो, मतलब आसन दे बैठ के आराम नाल पढ़ लो, नितनेम तो नहीं छड्डीदा। इसलिए ये महाराज सच्चे पातशाह के चरणों में बेनती है कि हे वाहिगुरु ऐसी कृपा करो, निता प्रति तेरे गुण गाइए जी, तेरे नाम नू जपना करिए जी। भुल चो क्षमा करो कि तू समत बख्शो। बलिहार जाओ गुरुदेव सफल दर्शन जाकी निर्मल सेव। दया करहु ठाकुर प्रभु मेरे, गुण गावे नानक नित तेरे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू।